تمام تعریفیں اللہ کے لیے، تمام درود و سلام محمد والے محمد کے لیے۔ ناظرین السلام علیکم، میرا نام ہے فراز احمد۔ آج ہم حاضر ہیں ایک نئی ویڈیو میں۔ آج ہم جس بارے میں بات کرنے والے ہیں وہ ہے جناب شہزادہ قاسم علیہ السلام۔ آل محمد کے چراغ ہیں یہ، اور مولا حسن مجتبیٰ کی جان ہے یہ، ام فروا کے لال ہیں یہ، اور مولا حسین کی جان ہے یہ۔ جناب قاسم کے جتنے بھی فضائل ہیں وہ دنیا میں بہت کم جانتی ہے دنیا، کیونکہ جناب قاسم کی شہادت کربلا میں ہوئی اور ان کی جنگ بھی لوگوں نے سن رکھی ہے۔ لیکن آج ہم بات کرنے والے ہیں جناب قاسم کی کچھ سیرت و کردار کے بارے میں، سیرت و اخلاق کے بارے میں۔ آج ہم بات کریں گے جناب قاسم کا ظہور کیسے ہوا اور کیسے مولا حسن کے فرزند جناب قاسم دنیا میں تشریف آور ہوئے۔ 7 شعبان کو ام فروا نام جو پڑا، مولا حسن کی ایک بیٹی تھی، ان کا نام تھا فروا، اور مولا حسن کی بیٹی کا نام تھا فروا، تو یہی سے ان کی والدہ کا لقب پڑ گیا فروا۔ جناب فروا خاتون سلام اللہ علیہ، ادب سے نام لینے والی کون ہے؟ جناب بی بی فروا سلام اللہ علیہ آتی ہیں 7 شعبان کو میرے مولا حسن کی سرکار کی بارگاہ میں اور کہتی ہیں، مولا آج مجھے بیٹا چاہیے، آج مجھے بیٹا چاہیے۔ مولا حسن ادب کے گہوارے میں سوال کرنا چاہیں گے، مولا آپ سے کر رہی ہیں، اللہ سے مانگ لیں، اللہ سے مانگ لیں، لیکن شہزادی آ کر کہہ رہی ہیں آج کے دن 7 شعبان کو جناب قاسم مجھے بیٹا چاہیے، مولا حسن مجھے بیٹا چاہیے۔ اب جناب قاسم کا ظہور سنتے چلے جائیے گا۔ 7 شعبان کو جناب بی بی فروا سلام اللہ علیہ مولا حسن کی بارگاہ میں آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ مولا مجھے بیٹا چاہیے۔ میں ایک سوال کروں، بی بی بیٹا تو اللہ دیتا ہے، تو پھر آپ مولا حسن سے عرضی کیوں کر رہی ہیں؟ مولا سے کہتے ہیں چلیں اللہ سے دعا کریں گے۔ بی بی ام فروا کہتی ہیں، جملہ سنیے گا، یہاں سے فضائل شروع کروں گا۔ جناب ام فروا سلام اللہ علیہ بی بی کہتی ہیں کہ جو شخص مکے مدینے سے آذربائیجان کا فاصلہ طے کر کے میرے مردہ بھائی کو زندہ کر سکتا ہے، وہ مجھے بیٹا کیوں نہیں دے سکتا؟ وہ مجھے بیٹا کیوں نہیں دے سکتا؟ بس اتنا سننا تھا کہ مولا حسن مسکرائے۔ مولا حسن مجتبیٰ نہیں الفاظ بدل دوں گا، محمد مصطفیٰ کے سورہ کوثر کی پہلی تفسیر، مسکرائے اور شہزادی کو کہا کہ میرے قریب آئے۔ کتابوں کے حوالے نیچے میں دے رہا ہوں، وہاں سے میں نے پڑھے ہیں، وہ آپ دیکھ لیجیے گا، وہ ریفرنس کے طور پر ہے۔ شہزادی کو مولا حسن نے کہا بی بی میرے قریب آئے۔ جناب بی بی ام فروا قریب آتی ہیں، مولا حسن ان کے پیشانی پر، پاک بی بی کے پیشانی پر ہاتھ پھیرتے ہیں۔ ہاتھ پھیرنے کے بعد میری شہزادی کے تین طرح کا نور پھیلنا شروع ہو جاتا ہے جو چکر کاٹ رہا ہے، جن میں ایک نور کا رنگ لال ہے، دوسرے نور کا رنگ سبز ہے اور تیسرے نور کا رنگ سفید ہے۔ تینوں نور نے میری بی بی کا طواف کرنا شروع کیا، رنگ بتا دیے، سبز رنگ، لال رنگ، سفید رنگ، اور مولا حسن کہتے ہیں جائیں حجرے سے لے آئیں قاسم کو۔ کہنے لگے میرے بادشاہ حسن جائیں اور قاسم کو حجرے سے لے آئیں۔ بی بی دوڑتی ہوئی جاتی ہیں اور دیکھتی ہیں، بی بی دوڑتی ہوئی جاتی ہیں، بی بی دوڑتی ہوئی جاتی ہیں اور دیکھتی ہیں تو سامنے سے حجرے سے جناب قاسم کو اپنے ہاتھوں میں لے کر آ رہی ہے، جناب قاسم کو اپنے ہاتھوں پر لے کر آ رہی ہے۔ ناظرین یہ دیکھیں، یہ ہے ان کی ظہور، یہ ہے ان کے ظہور، یہ ہے میرے شہزادہ قاسم کا ظہور۔ اور آپ نے جملے پر غور ہی نہیں کیا، میں نے کہا کہ مولا حسن نے کتاب میں لکھا ہے، کہا کہ قاسم کو لے آئے۔ دیکھیں کچن میں جو چیز ہوگی میں منگاؤں گا وہی۔ اگر میں کسی کو یہ کہہ دوں کہ مجھے گلاس لا دو تو وہ کچن میں جا کر لے آئے گا۔ آپ نے مولا حسن کا فکرہ سنا ہی نہیں۔ مولا حسن کہہ رہے ہیں قاسم کو لے آئے،
इस बात की ये दलील थी कि जनाब कासिम वक्त से पहले के बने तैयार थे और बाबा के हुक्म की तामील के लिए तैयार थे कि बाबा कहें तो मैं दुनिया में आऊँ। इस ज़ात अक़दस का नाम जनाब कासिम है, इस ज़ात मोतबर का नाम जनाब कासिम है। नाज़रीन, ये आले मोहम्मद हैं, ये अहले बैत हैं, उन पर अल्लाह दरूद पड़ता है। ये हैं जनाब कासिम का ज़रिया कि मौला हसन कहें ले आए हुजरे से जाकर, और जनाब बीबी अपने हाथों पर लेकर जनाब कासिम को ले आती है। जनाब कासिम, जनाब शहज़ादा कासिम एक ऐसी मोतबर शख्सियत जिसके बारे में इलामा डॉक्टर ज़मीर अख्तर नकवी ने 3 किताबें लिखी हैं। 3 किताबें इलामा साहब ने उन पर लिखी हैं और उसके अंदर जो उन्होंने जनाब शहज़ादा कासिम का हुस्न मुबारक लिखा है वो उनकी रूह को इसाल करने के लिए आपके सामने अर्ज़ कर रहा है। और डॉक्टर साहब लिखते हैं कि जो जनाब कासिम का जिसमें मुत्तहर था, जिसमें मुत्तहर मुबारक था, गुलाब के फूलों की तरह था। जनाब कासिम का जो जिस्म मुबारक था वो गुलाब के फूलों की तरह नरम था, शीरी था, शीरी। और उन्होंने ही अपनी किताब में एक वाक़या लिखा कि शहज़ादा कासिम की ज़िंदगी से मुतल्लिक़ जनाब इलामा ज़मीर अख्तर नकवी साहब की बयानी उनकी ज़िंदगी का एक वाक़या लिखा। वो वाक़या आपसे अर्ज़ करना चाहूँगा कि एक दफ़ा जनाब कासिम के सामने एक शख्स आया जो ज़ायचे तैयार करता था। उसने मेरे बादशाह शहज़ादा कासिम इब्ने हसन से फरमाया। उस शख्स ने जनाब शहज़ादा कासिम से कहा कि ये मौजज़ा क्या सच है कि आपके दादा अली एक होकर 40 मुकामात पर नजर आए। वजूद रखकर जनाब कासिम 40 मुकामात पर आपके दादा अली नजर आए। क्या ये बात सच है? शहज़ादा कासिम मुस्कुराते हैं और मुस्कुरा कर कहते हैं जरा पीछे मुड़कर देख। अब वो जहाँ पीछे मुड़कर देखता है वो क्या देखता है? कासिम 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 कासिम। क्या दादा ने अर्ज़ की अब आप दाहिने तरफ देखो। उसने दाहिनी तरफ देखा तो क्या देखता है? कासिम 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 कासिम। अब वो दाहिनी तरफ देखते हैं और जनाब कासिम कहते हैं क्या नजर आता है? कासिम 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 कासिम। एक कासिम होकर एक वजूद रखकर मेरे शहज़ादा कासिम ने दुनिया को बताया है, उस शख्स को बताया, कहा कि मैं पोता होकर एक मुकामात पर तुम्हें मैं एक वजूद रखकर तुम्हें एक मुकाम पर नहीं एक वजूद रखकर कितने मुकामात पर नजर आ रहा हूँ। और मैं उस अली का पोता हूँ, उस अली इब्ने अबी तालिब का पोता हूँ। तो जब मैं नजर आ सकता हूँ मेरे दादा नजर नहीं आ सकते। जब मैं नजर आ सकता हूँ तो मेरे दादा तो मुझसे भी अफजल थे। सामने गिरामी कदर देखें जनाब शहज़ादा कासिम का वजूद। जनाब शहज़ादा कासिम खुदा की कसम क्या शख्सियत थे, आले मोहम्मद के चराग हैं। ये आपने सुन रखी है। शहज़ादा कासिम के पास एक कबीला रुका और कहा कि हम आपको तब मानेंगे जब आप हमारे सामने खाना रखेंगे। शख्स ने कहा कि हम आपको तब मानेंगे जब आप खाना रखेंगे और आपको आपके दादा के फजालों को तब तस्लीम करेंगे जब आप हमारे सामने खाने रखेंगे। पलक झपकती जनाब कासिम ने कहा नीचे देखो, खाना पड़ा था। ये उसके बेटे हैं जिनका दस्तरखान मदीने में मशहूर था। ये वो हैं जिनका दस्तरखान मदीने में मशहूर था। जनाब कासिम ने कहा नीचे देखो, नीचे फल थे, तरह तरह के खाने थे। अब उसने कहा जनाब कासिम आप आसमानों से फलों की बारिश कर सकते हो। जनाब कासिम ने इशारा किया, तमाम फल नीचे आ गए, तमाम फल नीचे आ गए। जनाब कासिम ने एक जुमला कहा है, शहज़ादा कासिम ने एक जुमला कहा है, वो जुमला कहने की इजाज़त दी मुझे। शहज़ादा कासिम ने उन्हें कहा कि तुम मुझे
जांचने और मेरे दादा की विलायत के कायल होने के लिए नहीं कर रही जो तुमने मुझे कहा कि खाना दे दो। असल में तुम थे ही भूखे, असल में तुम थे ही भूखे, इसलिए तुमने डिमांड की खाने की कि खाने वाला मौजूदा दिखा दो। तो मेरे बादशाह हसन ने, तो मेरे बादशाह जनाब कासिम ने रख दिया, कहा ये खा लो। जनाब कासिम ने ये करामात दिखाई है दुनिया को। जनाब कासिम एक मोतबर शख्सियत आले मोहम्मद की। करबला के जब सफ़र पर जनाब कासिम को बिठाया गया है तो जनाब कासिम घोड़े पर नहीं बैठे, ऊँट पर भी नहीं बैठे। मैंने शुरू में अर्ज़ किया था कि जनाब कासिम का जो वजूद था वो गुलाब की मानिंद था, गुलाब की मानिंद था। तो मेरे बादशाह हुसैन ने आपको अमारी में बिठाया था क्योंकि जानते थे कि सफ़र में धूप कड़ी होगी, कहीं मेरे बदन पर नहीं, जुमला बदल दूंगा कि कहीं जनाब कासिम गुलाब के फूलों पर आसमान की सूरज की तपिश न पड़ जाए। इतनी मोहब्बत करते थे जनाब कासिम, इतनी मोहब्बत करते थे मौला हुसैन जनाब कासिम से। जनाब कासिम की हमला पढ़ूँ है, सिर्फ हमला पढ़ूँगा। देखिए जनाब कासिम मोतबर शख्सियत थे। जब करबला के मैदान में गए हैं तो एक मलूम था जिसे ख़ास तौर पर मौला, एक मलूम था जिसे ख़ास तौर पर मौला अब्बास के लिए बुलाया गया था करबला में लड़ने के लिए। उसे ख़ास तौर पर बुलाया गया था मौला अब्बास से जंग करने के लिए, क्योंकि वो 10,000 लश्कर के बराबर एक इंसान था। जनाब कासिम 13 बरस के थे। जनाब कासिम जब मैदान में आए हैं तो शोर उठा अली आ गए, शोर उठा कि अली आ गए। लश्कर को जाकर खबर होती है जनाब कासिम की, तो वो कहते हैं कि कासिम किसी से भी किसी के हाथ नहीं आ रहे, ज़मीन पर गिरा कर गाड़ देते हैं जनाब कासिम। तो अब जाकर इसमें मैं आले मोहम्मद के किसी भी दुश्मन का नाम लेना हराम समझता हूँ अपनी ज़बान से, क्योंकि इस ज़बान से पाकों का जिक्र होता है और जहाँ पाक का नाम हो वहाँ नापाकों का जिक्र नहीं करता हूँ। कि वो मलूम था जिसे मौला अब्बास के जंग लड़ने के लिए ख़ास तौर पर बुलवाया गया था, हायर किया गया था। अचानक जनाब कासिम मैदान में जाते हैं और जहाँ जनाब कासिम जाकर लश्कर पर टूटे हैं तो क्या मैसरा क्या मैमना, क्या मैसरा क्या मैमना, कल्ब लश्कर को चीरते हुए जनाब कासिम गए और जाकर इस तरह लड़े हैं। शागिर्द थे मौला अब्बास के, पूरी तैयार करके दी है शहजादी ज़ैनब ने करबला मौला हुसैन को। और मौला अब्बास ने एक एक बच्चे को वार सिखाया जंग लड़ने का अंदाज। कभी जब बात आएगी मुहर्रम की तो उनकी जंगें भी पढ़ूंगा। जनाब कासिम का वार पढ़ रहा हूँ। जनाब कासिम कल्ब लश्कर को चीरते हुए गए हैं और कल्ब लश्कर को चीरते हुए लश्कर को मार रहे हैं। जनाब कासिम की तलवार से कितने वासिले जहन्नुम हो गए, इस तक खबर पहुंची, अरज़क तक। बस मेरे बादशाह ने आगे का सफ़र तय किया और जाकर किसी मलून ने कहा कि अरज़क जाओ, एक कासिम है अली का पोता, इससे लड़ो, 13 बरस का है और किसी के काबू में नहीं आ रहा। अरज़क अकड़ा और अकड़ कर कहने लगा, मुझे अब्बास के लिए बुलाया गया है, कबीले वालों की, मेरे कबीले की तौहीन हो जाएगी, मैं बच्चे से लड़ूं और बच्चे पर हाथ उठाऊं। उसे पता ही नहीं था वो शहजादा कासिम कौन है, पता ही नहीं था जनाब शहजादा कासिम का रुतबा क्या है और कितने बड़े जंगजू हैं जनाब शहजादा कासिम, कितने बड़े सिपा सलार हैं, कितने बड़े तलवार जंग हैं शहजादा कासिम, जिनके तरबियत जंग की मौला अब्बास ने की हुई। चलनी बात है कि वो कितने बुलंद होंगे। जनाब शहजादा कासिम मैदान में खड़े हैं कि
अचानक अरज़क की बात जब मौला हुसैन के लश्कर को पहुंची तो मौला अब्बास कहने लगे, आका मौला हुसैन मुझे इजाज़त दी, वहाँ बड़ा है। बस मेरे मौला हुसैन ने मौला अब्बास के सीने अत्थर पर हाथ रख के कहा कि अब्बास मुझे कासिम पर यकीन है, अगर तुमने उसे जंगजू सिखाई है तो वो उसकी वो हालत करेगा कि वो आइंदा आने वक्त तक तुम्हारी शुजाअत और उसकी शुजाअत एक मानी जाएगी। बहुत बड़ा जुमला कह रहा हूँ। जनाब कासिम ने बस अपने चचा अब्बास की तरफ देखा, अपने चचा अब्बास की तरफ देखा और अपने चचा अब्बास की तरफ कहते हैं, चचा अब्बास इजाज़त है। मौला अब्बास देखकर खुश हुए कि मेरा आज शागिर्द हुसैन की जान हसन का रखते जगह लड़ने को तैयार है। कहा मौला बस मुझे इजाज़त दें कि मैं कासिम को बताऊं कि इससे जंग कैसे करनी है, बस मुझे उस टीले पर जाने दें, मैं वहाँ से कासिम को बताता रहूँगा। मौला हुसैन ने कहा खुदा खैर करे, जाए अब्बास आप जाओ। मौला अब्बास अब खड़े हैं कहाँ, चोटी पर, नीचे कासिम है, सामने इज़रत अभी तैयार हो रहा था, तैयार होकर मैदान में आया। इज़रत को जो खबर पहुंची कि अब्बास नहीं उनके शागिर्द आए हैं, उसने कहा 13 बरस के बच्चे से मैं क्या लड़ूं, मैं क्या लड़ूं। आपने कहा, उसने कहा कि मेरे 4 बेटे हैं और मैं अपना सबसे छोटा बेटा जंग करने के लिए भेज दूंगा। हाय किस्मत उसकी कि जो ये समझ रहा था कि 13 बरस के हैं। जनाब कासिम आते हैं, जनाब कासिम ने उसके बेटे को पहले बार में ख़त्म कर दिया, फिर दूसरे बेटे को ख़त्म किया, फिर तीसरे को ख़त्म किया, फिर चौथे को ख़त्म किया, फिर बाप आ गया। अब जब बाप आया है वो तपा था कि उसके 4 बेटों को मार दिया, 4 बेटों को मार दिया, वासिल जहन्नुम कर दिया। अब वो आता है, जैसे ही आता है जनाब अब्बास ने कहा कासिम इंतज़ार ना कर, घोड़ा दौड़ा। जनाब कासिम के जुलजना का नाम था महमूद। कभी इस पर भी फ़ज़ाइल पढ़ूंगा, कभी इस पर भी फ़ज़ाइल पढ़ूंगा, खुदा की कसम। जनाब कासिम को दुनिया समझी क्या है, जनाब कासिम को दुनिया क्या समझी है, उनके जुलजना के फ़ज़ाइल मौजूद हैं और वो भी कभी अर्ज़ करेंगे। बस जनाब कासिम अपने महमूद पर सवार चले, सामने था। मेरे मौला अब्बास ने कहा कासिम एक तलवार सीधे हाथ में रख, एक तलवार सीधे हाथ में रख। बस जनाब कासिम ने तेज़ी रफ्तार में गए और एक हाथ में तलवार थी और जनाब अब्बास कहते हैं इसके बालों से इसको पकड़े। अबे कासिम ने अरज़क को अपने हाथों से पकड़ा और उसके बालों में हाथ डालकर घसीटते हुए, ये कौन था जो मौला अब्बास के लिए आया था और ये वो था जो थोड़ी देर पहले कह रहा था कि बच्चे हैं। जनाब कासिम ने अपने हाथों से उसके बालों को अपने हाथों में लिया था और हाथों में लेकर जनाब कासिम से ज़मीन पर रेड़ते हुए ले जाकर सामने फेंकते हैं। जनाब कासिम अपने महमूद पर सवार है। फिर जनाब कासिम ने इसको उठाया, गिरबान से पकड़ा, उठाकर इतना ऊंचा किया, उठाकर इतना ऊंचा फेंका। अल्फाज भी कई लम्हों के लिए, कई लम्हों के लिए, कई लम्हों के लिए अरज़क फ़ज़ाओं में गुम हो गया। कई लम्हों के लिए हवाओं में अरज़क गायब हो गया, अरज़क गायब हो गया। अब जनाब कासिम को मौला अब्बास कहते हैं अपनी तलवार मैदान से बेनयाम कर। बेटा कासिम अपनी तलवार को बेनयाम करे। जनाब कासिम ने अपनी तलवार को उठाया, उठाने के बाद तलवार को सीधा रखा। कुछ लम्हों बाद देखते हैं अरज़क आसमान से सीधा आता हुआ नोक पर आकर दोनों 2 टुकड़े हो गए।
کہ جناب قاسم نے پھر اچھالا اور 1 سے 2 کیا، 2 سے 4 کیا اور ارزق ختم۔ یہ ہیں جناب قاسم ابن حسن، یہ ہیں جناب قاسم کا رتبہ۔ دنیا ان کے فضائل کو سمجھ نہیں سکتی۔ کبھی آپ قاسم نام کا اگر لفظ دیکھیں تو میں اسم بتا دیتا ہوں۔ حجت کبھی بھی نام رکھتی ہے تو کسی نسبت سے جوڑ کر، کسی نسبت سے جوڑ کر۔ شاید یہ کاف 2 نقطہ والا قاسم قرآن کا کاف ہو، سورہ قدر کا کاف ہو، قرآن کا کاف ہو، قبلے والا کاف ہو، الف سے احد کا یا احمد کا الف ہو، سین سے حسن کی سین ہو اور میم سے محمد، سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک لقب ہے۔ وہ لقب کیا ہے؟ وہ لقب ہے ابو القاسم۔ تو یہاں سے میرے جناب قاسم کا نام، جناب شہزادہ قاسم کا نام قاسم رکھا۔ آگے آنے والے وقتوں میں جناب قاسم کے اوپر میں ایک ویڈیو پوری بناؤں گا اور ان کے فضائل بتاؤں گا۔ آج صرف ولادت تھی تو میں نے ولادت پر کچھ فضائل بتائے ہیں۔ یہ ہیں جناب قاسم۔ لوگوں کو، تمام مومن مومنات کو جناب قاسم کا ظہور مبارک، اور مولا سب کی مراد پوری کرے۔ جن کی اولاد نہیں انہیں اولاد مدینہ سے اولاد عطا فرمائے، اور جن کے پاس بیٹی نہیں ان کو شہزادی سکینہ کے توسل سے بیٹی عطا فرمائے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اپنی اگلی ویڈیو میں۔ اگلی ویڈیو میری شہزادہ علی اکبر پر ہونے والی ہے، تو ملتے ہیں انشاءاللہ اپنی اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔